just let me know if you are able to see my screen. Is it visible? Hello? Okay, fine. So basically in our last session we have covered a few problem statement here, like finding the sum of two numbers, and then we have seen like what are the functions in C, and what are function declaration, function definition, and like how the function works under the hood. So some of you might have missed the class. My request is to go through that existing class, and then like if you are having any doubts we can always cover it up whenever we are having the session. But for now I will begin from the part where we have left last time. So what we have done is, like, in the last time we were seeing one of the pseudocode for finding the largest among the three numbers. So we discussed about this logic, and if you see here I have written it down. I will just explain you. So if you see here, we have defined these three integers, and the problem was to find the largest among the three numbers. What we have done is we have took a largest variable and then we assigned it to the first variable. Okay, so that way what we have done the comparison between the first and the second, and whichever is the largest we assign that variable to the largest variable. So in this case 10 and 20 we did the comparison, then in this case 20 was the largest, we assigned the largest to the B variable. Then whoever won the race for the first time, right, B out of A and B, so B won the race, so B and C we did the comparison. So in this case 20 and 30 we did the comparison, and then whoever wins the race we assigned it to the largest variable. Then we printed this part. So this was the last program we have seen, and if you see here this is the same as the flow chart. So we started here, get the three number A, B and C if A is greater than B. If you see here, if it is yes, it went like if for the comparison for the another, if A is greater than C. So in this case if you see A is larger than B, right? So then again if it is yes, if the condition is true, we do the comparison between A and C, and again like if A is again greater than C, we say that A is the largest. And in this case if you see, if A is not greater than C, that means C is greater than A. Okay, that way what will happen, largest will become C. Okay, now again if we do the comparison here, if A is greater than B, if A is not greater than B, then B is greater, right? Then we do the comparison between B and C. When we do the comparison between the B and C, if B is greater, then we assign the largest to the B. If in this case if the condition becomes false, then C is greater than B, correct? So largest will be assigned to the C variable, and that way the program ends. So this is how a largest can be either of A, B or C based on the comparison between each other. Okay, this is how this program works. Any doubts so far, or anyone wanted to have any point here? So no, right? So we'll move forward. This is the same thing. Here they have done the comparison. A is greater than B. If A is greater than C, then largest will be A. Since here also it was greater, here also it was greater, so largest will be assigned, A will be assigned to the largest. Now here
If C is greater than A, then largest will become C. Okay. Now here, if you see this block, if A greater than B, this is the part where we did the comparison between A and C, because here A was greater. If A is not greater than B, that means B was greater than A, then we do the comparison between B and C. If B is greater than C, then B would be assigned to the largest, else C would be assigned to the largest. Okay, so this is the thing, and it is the same explanation it is done here. If you see, this is the same part, and this is how, like, once you have this flowchart, you have this pseudocode, you will write a function. You will convert this logic into a function definition. So why it is function definition? It is function definition because it gives you the logic for actual execution of the program. That is why it is called the function declaration. There are two other parts as well that we have covered earlier in our previous session. One was function declaration and the another was function calling. So function declaration means it is for the compiler to understand that this program exists in our code base, and function calling is for calling this function from your part of code. Okay, so this is how the function is defined. You have this function name, you have the parameters, or you cannot have the parameters, both is well. So in this case we wanted to compare, that's where we pass the parameters A, B and C, and then this function returns something. What does it returns? It returns a variable. It returns a variable of the type integer, and then the same thing you need to define it over here. What is this? It is an integer, correct? So this is called the return type of the function. Okay, this is how your function is defined, and the same logic is written over here. Okay, now they are just doing the same thing, like they are writing the actual C program. Now if you see here, has include stdio.h int find largest A, B and C. So this find largest is a function. This function is called the user defined function. Why it is called a user defined function? Because the actual logic for implementation is written by the programmer or someone who is writing this code. So that is the reason this function is called the user defined function. User is defining the logic, and there are three parameters to this function, A, B and C, and then it has a return type of integer. Now this part of code, this statement is called the function declaration, where we are declaring the function. Okay, now the program starts from the main. We assigned A, B and C three variable just to take the inputs of the three numbers, and then later we will find the largest. Initially largest is assigned with 0. So here we have printf and scanf statement where we are asking the user to enter the first number, then we ask the user to write the second number, then we ask the user to write the third number. Then here we have the function calling. How the function calling happens? We write the function name and then we pass this A, B and C. And please note, this A, B and C should be an integer. If you pass here float value or a character value, this program will not work. This will give you an error. Okay, why you need to pass integer? Because in the function declaration you told that you will be passing the integers over here. So I would be passing here 3 integers. So that's the reason A, B and C are passed here. And if you see, A, B and C, both the three variables are integers. Then find largest A, B and C. Now the compiler will go here, it will check whether this function exists or not. So it exists, correct? Then it moves to, from here the function moves to the actual definition. And where is the definition? This is the definition.
this part will get executed. From here the control will then move to here. Okay, then you do the same thing like whatever the logic that we have discussed so far, and then it will return the largest. Okay, this function will return the largest value. Once this function will return the largest value, this part of the code would be replaced with that value, largest value. Say for example we got the largest as 30, then what will happen, largest is equal to 30. Okay, then you have the printf statement where largest number is percentage d is written, so 30 would be written over here. Okay, or whatever is the largest, that would be printed over here. So this is the actual like C program, how to find the largest term 3 number. And before that we have already discussed about the logic and then the implementation of the program. So okay, any doubts or confusion over here? Hello? Anyone? Anything that it was not clear, or just write in the chat, like I think if you are clear with this program, then just write it is clear, or if anyone have anything to discuss for this program, we can discuss and then we can move forward. Okay, I think everyone is clear. Whoever is this, like KGC, are you having? Okay, हिंदी में करते हैं. Okay, someone might be facing issue with the language, so let me try to do this with Hindi as well. Not a problem. Okay, so the next program is finding largest among a series of number. So इसमें क्या करना है, इसमें ये प्रोग्राम एक लिखने को बोला है जिसमें आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दिया जाएगा. ठीक है, उस सीरीज ऑफ नंबर से हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उसका प्रोग्राम लिखना है. ओके, तो दिस इज़ द कोड. लाइक इफ़ यू सी हियर, ये कोड है जिससे मतलब एक सीरीज ऑफ नंबर से हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम है. ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या रहेगा, यू ऑलरेडी नो राइट, कि एक 3 नंबर से हमको लार्जेस्ट कैसे फाइंड करना है वो हमको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि हमने पिछला प्रोग्राम में हमने दिखा था वही सेम चीज़. अब इसमें अगर आपको बोलेंगे कि एक सीरीज ऑफ नंबर से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, तो उसका लॉजिक कैसे चेंज होगा. उसमें थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि आपको वेरिएबल्स के जगह में आपको एरे लेना होगा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इनिशियली में आपको क्या किया कि एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सीरीज़. ठीक है, तो यू सी हियर नंबर्स एक एरे डिफाइन कर दिया है जिसमें मतलब आप 20 वेरिएबल डाल सकते हो. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक फाइंड लार्जेस्ट इंट, ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, कि आपको एक फाइंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे जाएगा, एक फंक्शन रहेगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसमें इंटीजर वेरिएबल आप इनपुट दे सकते हो और उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर रहेगा. ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि नंबर्स एक एरे है. ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा मेन से, तो इसने 2 वेरिएबल लिए है, टोटल एलिमेंट एंड देन द लार्जेस्ट. ठीक है, टोटल एलिमेंट का काम ये रहेगा कि आप यूज़र से बोलोगे कि आपको कितना नंबर इनपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग ने टोटल एलिमेंट वेरिएबल लेके रखा है. ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सीरीज स्कैन एफ टोटल एलिमेंट, ठीक है। इसमें यूज़र इनपुट किया सपोज 5, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट में हमारा वैल्यू गया 5। टेकिंग इनपुट्स टू एरे एलिमेंट, तो ये क्या लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा। फॉर आई इजिकल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, तो अगर आई इजिकल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस है तो ये कितना बार लूप चला, ये लूप चलेगा 5 बार। क्यों 5 बार चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। और जैसे ही ये 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही रीज़न है कि आपने यूज़र से बोला 5 और हमने ये लूप चलाया 5 बार, ठीक है। फिर हमने ये प्रिंट कर दिया एंटर एलिमेंट, फिर यूज़र ने प्रिंट किया स्कैन एफ। स्कैन एफ से क्या होगा कि यूज़र से आप इनपुट लोगे और हर एक इनपुट जो यूज़र से ले रहे हो उसको आप नंबर वाले एरे पे डाल दोगे। देखो एम्परसेंट नंबर आई लिखा है, ये कैसे जाएगा एरे पे मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ यूज़र ने डाला 0, सपोज़ यूज़र ने डाला 10, ठीक है, तो नंबर ऑफ 0, नंबर 0 में क्या जा रहा है, 10 जाएगा। तो ये जो हमने 20 वाला एरे डिक्लेयर किया था, इसके 0th पोजीशन में हमारा गया नंबर 10। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आई नंबर वैल्यू में भी 1 नंबर वैल्यू में भी जो आई इजिकल टू 1 नंबर का वो है उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ 1। नंबर ऑफ़ 1 क्या होगा, इसका सेकेंड पोजीशन में चला जाएगा। ऐसे करके आपके ये लूप क्योंकि 5 बार चलेगा, राइट, 0 1 2 3 4, तो 5 नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे और ये एरे पे हम लोग डाल देंगे नंबर ऑफ़ आई पे। फिर अब क्या होगा, फाइंड लार्जेस्ट। अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, देखना ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन कॉल है ये यहाँ पे देखेगा कि ये डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं। तो ये डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर इसके बाद ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंट्रोल कहाँ चला गया, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में हमारा जो एक्चुअल कोड का जो फ्लो है या एक्चुअल कोड का एग्जीक्यूशन है वो लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ 0 को हमने लार्जेस्ट असाइन कर दिया, जो 0th पोजीशन में था उसको हमने लार्जेस्ट असाइन कर दिया। फिर हमने एक लूप चलाया, फिर हमने क्या किया कि जो नंबर था, नंबर ऑफ हर एक नंबर जो भी एरे का जो नंबर है, 0th पोजीशन 1th पोजीशन 2nd पोजीशन 3rd पोजीशन 4th पोजीशन, इस टाइप से जितने भी नंबर है उसको हम लोग क्या से कंपेयर करते हैं, लार्जेस्ट से। और जो भी नंबर पिछला वाला जो लार्जेस्ट से वो बड़ा रहेगा उस नंबर को हम लोग लार्जेस्ट बना देते। अगर आप ये लॉजिक देखोगे ना, ये सेम ही है जैसे हमने वेरिएबल 3 वेरिएबल के यहाँ पे केस पे कंपैरिजन किया था, 3 वेरिएबल के केस पे हमने कंपैरिजन किया था, सेम काइंड ऑफ लॉजिक है। बस इसमें चेंज ये है कि हमने इस वेरिएबल को लेने के बजाय हमने क्या किया, हमने किया कि यूज़र से इनपुट लिया। और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वेरिएबल से नहीं, हम लोग एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार ये लार्जेस्ट नंबर हमको मिल गया तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यहाँ से जिसे रिटर्न किया तो लार्जेस्ट का वैल्यू अपडेट हो गया और यूज़र को हमने लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको ना ये चीज़ एक बार मतलब थोड़ी सिंपल उसमें से समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग ये कोड को यहाँ पे ले जाएंगे, सपोज एक ड्राई रन करते हैं कि ये कोड कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मेन पार्ट आपका ये है। इससे पहले वाले तो जो भी डिक्लेरेशन थे जो भी थे वो है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल एलिमेंट सपोज हमने क्या लिया है, टोटल एलिमेंट हमने लिया है 5, ठीक है। टोटल एलिमेंट लिया है 5 और सपोज ये स्कैनफ वाला पार्ट जो था ना, यहाँ पे जो यूज़र ने स्कैनफ वाला जो पार्ट था, टोटल एलिमेंट को लेके हम लोग नंबर आई पे ये डाल रहे थे ना,
तो सपोज़ ये नंबर वाला जो एरे है ना, नंबर वाला जो एरे है, इसमें हमारा वेरिएबल नंबर जा चुका है 34, 22, 68, 12, 18। ठीक है, 5 नंबर बोला था यूज़र ने, 5 नंबर डाल दिया, कोई भी एक रैंडम 5 नंबर डाल दिया। तो अब देखना क्या होगा, आई का वैल्यू ये हो गया, एक सेकंड, ठीक है। इनिशियली क्या करके रखा इन्होंने, लार्जेस्ट एक वेरिएबल लिया इन्होंने, लार्जेस्ट लिया, और लार्जेस्ट का वैल्यू क्या अपडेट कर दिया, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 34, करेक्ट, 34 हो गया। तो इनिशियली लार्जेस्ट क्या है, 34। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप चला है, ये फॉर लूप चला है। सब इनिशियली क्या होगा, आई का वैल्यू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू जब 1 हुआ, 1 लेस देन टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट क्या है 5, 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, करेक्ट। एक 1 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ वो कोड के अंदर में चला जाता है, यहाँ पे अंदर पे, इसके अंदर पे ये चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। नंबर ऑफ जीरो ग्रेटर देन लार्ज, नंबर ऑफ 1, जो आई का वैल्यू है ना, आई का वैल्यू इनिशियली कितना था, 1 था, तो नंबर 1 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट कितना है, 34, ठीक है। नंबर वन क्या है, 22, 22 ग्रेटर देन 34 हो जाएगा फिर। तो क्या 22 ग्रेटर देन 34 है, नहीं है, करेक्ट, दिस कंडीशन इज फॉल्स। 22 इज नॉट ग्रेटर देन 34, ये कंडीशन क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये इसके अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा, ये जो लार्जेस्ट वाला जो नंबर, इसका अपडेट वाला जो कोड है, उस नंबर को हम तब लार्जेस्ट बनाएंगे जब नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इस कंडीशन में फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर नहीं गया, ठीक है। फिर लूप चला, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आई से कंपेयर करके उसको आई प्लस प्लस कर दिया था। अब नेक्स्ट टाइम ये जब फॉर लूप चलेगा, आई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 6, 2 लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके अंदर में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन चेकिंग है, फिर ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक इसके अंदर में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही फॉल्स होगा वो इसके अंदर में नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर से आ गया, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, नंबर 2, क्योंकि आई का वैल्यू अब कितना हो गया है, 2, इज नंबर 2 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, 34, नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 22, 68, क्योंकि ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। 68 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना है, 34, तो इज 62 ग्रेटर देन 34, हाँ 68 ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, तब क्या होगा, इसके अंदर में यहाँ पे जो लिखा था ना कंडीशन, ये कंडीशन क्या लिखा था, जो कि लार्जेस्ट वेरिएबल है, लार्जेस्ट वेरिएबल है, उसको किससे अपडेट कर देना है, नंबर ऑफ आई। नंबर ऑफ आई क्या चल रहा है, नंबर ऑफ 2 चल रहा है अभी, तो नंबर 2 क्या था, 68 था, तो 34 के जगह में अब लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 68, ओके, ठीक है। फिर आई का वैल्यू हो गया कितना, आई का वैल्यू हो जाएगा 3। अब फॉर लूप चलेगा फिर से, 3 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, और सॉरी, आई 1 2 3, 34 से कंपेयर किया, 22 से कंपेयर किया, 68 से कंपेयर किया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये
12 नंबर ऑफ 3 में क्या आ जाएगा देखना। अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है नंबर ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, अब हम 34 से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट का वैल्यू ऑलरेडी 34 से 68 में अपडेट हो गया है, तो अब 68 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 3 में क्या आएगा 0 1 2 3 12 ग्रेटर देन 68, इज 12 ग्रेटर देन 68 नो। ठीक है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे i इजिकल टू 4 क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट कंडीशन लगा हुआ था, तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा नंबर 4 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है 68। नंबर 4 कितना है 12 ग्रेटर देन 68, कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ लार्जेस्ट अपडेट नहीं होगा क्योंकि लार्जेस्ट हम लोग कब अपडेट करते हैं जब वो ट्रू होता है। ठीक है, अब i का वैल्यू कितना हो गया 5। अब देखते हैं i इज 5 लेस देन 5 कंडीशन इक्वल टू 5 जब लोगे तो क्या होगा, ये 5 लेस देन 5, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया राइट, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो इतने में क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रिटर्न लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट क्या था, सबसे लास्ट वैल्यू क्या अपडेट हुआ था 68 राइट, तो ये 68 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये जो प्रोग्राम है ये क्या देगा, एक यूज़र से सीरीज ऑफ नंबर लेगा, वो कंपेयर करेगा। पहले तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग लार्जेस्ट बना देते हैं, फिर हर एक एलिमेंट उसके बाद इटरेट करके, इस लूप को इटरेट करके उस नंबर को इससे कंपेयर करते हैं। और अगर कंपैरिजन में अगर हमको लगा कि जो नंबर एरे का नंबर है, एरे का जो एलिमेंट है वो करंट लार्जेस्ट वेरिएबल से बड़ा है, तो हम लोग लार्जेस्ट को उस एरे के एलिमेंट को अपडेट कर देते हैं। फिर सेम चीज़ हमको उनको रिटर्न कर देंगे, और ये जैसे ही रिटर्न करेंगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा आपके प्रोग्राम पे। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आप लोग को, आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो या आप चैट में लिख सकते हो कि ये सेक्शन पे हमको डाउट्स हैं। या तो सब अगर क्लियर है तो फिर भी आप बोल दो चैट पे कि ऑल क्लियर। ओके, रणवीर is joining. So basically नेटवर्क, हेलो, आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? मैंने चेक नहीं किया था लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। सो इज एवरीवन हियरिंग नाउ? ओके 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 ओके, अंडरस्टूड।
I think Ranveer was also joining. Not sure whether he is able to join or not. Okay. So we'll move to the next part. तो ये part clear है, right? How to find the largest among a series of number. Okay, then we'll move to the next part. To find the digits of a number. So then I will continue in Hindi only so that it would become clear to everyone. And in between, like, I will try to add up English as well. And if you are finding any difficulty with any of the languages, we can always have third language, which is Assamese. And that way we will move. Okay. So another program. Now this program is to find the digits of a number. Okay. Now what does this program say? Say for example, you are writing some integer. Okay. You are writing some integer. Find the digits of a number. Okay. Say for example, user has entered. एक किसी यूज़र ने डाल दिया 567. तो हमको आउटपुट क्या देना है? हमको आउटपुट देना है 5, 6, 7. जो भी इस नंबर के डिजिट्स होंगे, यूज़र ने जो भी इनपुट करेगा उसका हमको क्या देना है? 5, 6, 7. मतलब जो भी उसका क्या होगा, उसके डिजिट्स होंगे. अगर यूज़र ने डाल दिया 4, ऐसे कुछ रैंडम नंबर डाल दिया, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट जो भी आना चाहिए, मतलब आप एरे में लोगे आउटपुट या आप ऐसे ही प्रिंट करोगे स्टेटमेंट. लेकिन इस प्रोग्राम का मोटिव है कि आप इसमें जितने भी डिजिट्स यूज़र डाल रहे हैं ना, जैसे 4, 3, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 6, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो इस टाइप के आउटपुट चाहिए होंगे. ठीक है, कि यूज़र ने कोई भी चीज़ डाला, उस चीज़ का हमको आउटपुट पे उसके डिजिट्स प्रिंट करवा दो. मतलब इस टाइप का आउटपुट, वो उस टाइप का प्रोग्राम वो मांग रहे हैं. ठीक है, अब देखना ये प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में क्या किया, यहाँ से इंट मेन से शुरू होता है प्रोग्राम. ठीक है, तो इंट नंबर लिया. उस नंबर, ये वही नंबर है जो यूज़र से ये लोग इनपुट लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है, फाइंड डिजिट नंबर. तो इसके बाद फंक्शन कॉल जैसे ही होता है तो ये कहाँ पे चला जाता है? नेक्स्ट इसका कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन में. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वो फंक्शन डिक्लेरेशन है नहीं. जैसे हम लोग पहले यहाँ पे एक डिक्लेयर करते थे ना, ये वाला लाइन लिख के कि ये फंक्शन डिक्लेयर, ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंपाइलर पे है. तो इस प्रोग्राम पे वो चीज़ है नहीं. तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? किसी को मालूम है, या किसी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा था या सेशन को देखा था? ओके, तो इसका लॉजिक ये है कि जब आप कोई भी फंक्शन को मेन के ऊपर में डिफ़ाइन करते हो ना, जैसे ये मेन हो गया, इंट मेन के ऊपर अगर आपने किसी फंक्शन को डिफ़ाइन किया है तो वो फंक्शन को आपको डिक्लेरेशन नहीं करने से भी हो जाता है. ठीक है, तो वो मतलब सी प्रोग्रामिंग का एक क्या बोले उसको, वो एक फीचर तो नहीं बोल सकते हैं, वो एक टाइप का इनका प्रोग्रामिंग पैराडाइम है कि आप ओके
वॉइड मतलब ये हो गया कि ये प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिछला वाला प्रोग्राम देखते हैं ना, यहाँ पे ये एक लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जो कि क्या था, इंटीजर टाइप का वैल्यू था। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, इससे पहले वाला जो है वो क्या है, ये फंक्शन नेम हो गया, ये फंक्शन पैरामीटर हो गया। और फंक्शन का और एक पार्ट एलिमेंट होता है रिटर्न टाइप। ये फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, ये जो इंटीजर पार्ट है ये हम लोग ने इसलिए लिखा क्योंकि हम ये फंक्शन से एक लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे ले जा रहा है, यहाँ पे ले जा रहा है, और फिर लार्जेस्ट का वैल्यू असाइन कर दे रहा है इंटीजर वाला जो भी यहाँ से रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, बट अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे ना, ये प्रोग्राम में कुछ रिटर्न हो रहा है कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है नहीं, करेक्ट। सो इसीलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया वॉइड। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। जो कॉल कर रहा है ना फंक्शन कॉल, यहाँ पे इस फंक्शन कॉल को, ये यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे कुछ ला के नहीं दे रहा है। मतलब ये बस कॉल हो रहा है, ये जैसे फ़ोन कॉल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको, इस फंक्शन के रिटर्न टाइप को वॉइड लिखा है। वॉइड हम लोग तब लिखते हैं जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। लेकिन ये फंक्शन काम करेगा कि नहीं, अगर हम लोग वॉइड लिखेंगे, बिल्कुल काम करेगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे ये रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। तो अगर आप प्रिंट एफ भी नहीं लिखते तब भी ये काम करता, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स है वो दिखाने हैं, तो इसलिए हमने ये क्या किया है, एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स को यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। अभी वॉइड क्यों लिखते हैं हम, वॉइड तब लिखते हैं जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो इस पे यहाँ पे ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ये वॉइड लिख रहे हैं। ये पार्ट क्लियर है क्या आप लोग को? हेलो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, ये मेन पार्ट है इस प्रोग्राम का। देखते हैं ये लॉजिक कैसे काम करता है। ठीक है, ये लॉजिक को मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। बाकी तो आपके फंक्शन कॉल्स जैसे हो रहे हैं वो सभी पार्ट है, मतलब वो तो आपको मालूम ही होगा अब तक। तो ये वाले पार्ट्स तो आपको मालूम है ना, क्योंकि प्रोग्राम कोई भी इंट मेन से शुरू होता है, फिर आपने एक नंबर लिया, ये प्रिंटफ हो जाएगा यूज़र उस पर, और स्कैनफ से आप एक नंबर इनपुट लोगे, उस नंबर को आपने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल करने के बाद ये रिटर्न 0। ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया। लेकिन मेन पार्ट जो एक्चुअल इस फंक्शन का मेन पार्ट है ना, ये यहाँ पे है, ये लॉजिक हो गया कि अगर आप यूज़र ने कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसे डाल दिया रेंडमली, यहाँ पे जो भी नंबर इसने डाल दिया, तो उसका हम वो कैसे करते हैं कि इसके डिजिट्स को कैसे प्रिंट करते हैं। अब देखना, इनिशियली क्या किया है ना, एक टेम्प वेरिएबल लिया है। ठीक है, टेम्प वेरिएबल, सपोज ये नंबर पे आ रहा था, आपका नंबर पे आ रहा था ये। ठीक है, नंबर पे हमने 5467 लिया। इस 5467 को हमने क्या पे असाइन कर दिया, टेम्प वेरिएबल पे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, डिजिट क्या किया हमने, 0 को असाइन किया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, ये वाइल लूप है। वाइल लूप आप लोग को मालूम होगा, फॉर लूप हो गया एक, ये वाइल भी एक लूप, फॉर लूप के तरह ही है। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हो, या कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स होगा, उस पर अगर आपको लॉजिक लगाना है एक लूप का। लूप मतलब क्या हो गया, वो बार बार रिपीट करता जाएगा। कब तक रिपीट करेगा, जब तक उसका टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आएगा, कि उस लूप से अगर हमको बाहर निकलना है तो उसका एक टर्मिनेटिंग कंडीशन रहता है। ठीक है, हर एक, जैसे फॉर लूप में जो मिडिल वाला पार्ट रहता है ना, बीच वाला पार्ट, कि इस पार्ट पे अगर ये नंबर आ गया
जैसे वो उसमें देख रहे थे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो आई लेस देन 5 जो है वो टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि अगर आप आई का वैल्यू 5 से ऊपर लोगे, 5 या 5 से ऊपर लोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी वाइल लूप में भी वही रहता है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ना, वो जो फॉर लूप वाला मिडिल वाला पार्ट था वो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। और ये सिंटेक्स लिखने का इस टाइप का है कि आप वाइल लिखोगे, वाइल के अंदर पे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, वाइल के अंदर पे ये लॉजिक अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस लॉजिक को हम लोग चेक करते हैं ये कैसे हो रहा है, देखना। इसने थोड़ा डिस्टिंक्ट कर दिया है, ठीक है। ये वाइल लूप पे आया, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाइल लूप इटरेशन 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, टेम्प ग्रेटर देन 0। अभी टेम्प का वैल्यू कितना है, 5 4 6 7। 5 4 6 7 ग्रेटर देन 0, हाँ 5 4 6 7 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लूप के अंदर जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिट जो वेरिएबल हमने लिया था यहाँ पे, डिजिट इक्वल टू 0 जो था, उसको हम लोग कुछ एक वैल्यू से ये कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। क्या वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, 10%, 5 4 6 7 %10। इस %10 का काम क्या है, इस %10 का काम है जो भी रिमाइंडर होगा, राइट। अगर आप 5 4 6 7 को 10 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर नहीं चाहिए, इसका जो रिमाइंडर होगा ना, उस रिमाइंडर के आउटपुट को देना इस परसेंटेज सिंबल का काम है। इसको हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं, मॉड्यूलो, ठीक है। तो अगर आप 5 4 6 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, कुछ डेसिमल पे आएगा, राइट, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 5 4 6 7। 5 4 6 7 10 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली। तो क्या होगा, 10 5 जा 50, 46 आ गया, फिर 10 4 जा 40, 67 आ गया, फिर 10 6 जा 60, ये तो आंसर हो गया। फिर रिमाइंडर क्या आ गया, इसका कोशेंट जो आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको आंसर ही लिख देते हैं यहाँ पे, कोशेंट बोलते हैं वैसे। और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो जो देखना 546 जो है, इसका कोशेंट हम लोग लिखते हैं। वॉइस क्लियर है ना अभी आपको, या वॉइस क्लियर नहीं है? एनीवन, आदर्श और फुलमती, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वॉइस आ रहा है, सही है। तो 5 4 6 7 को जब आप 10 से मॉड्यूलो करोगे ना, तो ये जो मॉड्यूलो जो देता है ना, इसका जो आंसर निकलेगा यहाँ पे, अगर हम लोग ये ऐसे लिखते हैं हम, डिवीजन, ठीक है। पहले लाइन पे हमने डिवीजन लिख दिया। ये जो डिजिट होगा, डिजिट में क्या जाएगा, 10%, 5 4 6 7 %10। जब आप %10 करोगे ना, तो ये जो %10 देगा, ये जो इसका आंसर नहीं देगा। ये जो कोचेंट आया ना इसका, कि आप अगर इससे 5 4 6 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 546 इसका ऊपर में आता है, इसका कोचेंट हो गया। और जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर देगा ना, वो मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको क्या देगा, 7 देगा, जो कि रिमाइंडर है। उस डिवीजन का जो रिमाइंडर होगा वो दे देगा। तो 7 आ गया, ठीक है। डिजिट पे आ गया 7। फिर इसने ये क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस डिजिट को। अब डिजिट पे क्या प्रिंट हो गया है, अब प्रिंट हुआ है आपका, प्रिंट हो गया 7, प्रिंट हो गया कंप्यूटर के स्क्रीन पे,
ठीक है। फिर ये लूप चला, यहाँ पे ये नेक्स्ट कंडीशन है टेम्प इजिकल टू टेम्प प्लस। अब देखना टेम्प का वैल्यू जो होगा, टेम्प का वैल्यू क्या होगा, टेम्प बाय 10। ये जो टेम्प बाय 10 था, टेम्प कितना है 5467, 5467 बाय 10। ये जो ये सिंबल है ना डिवाइडेड बाय 10, ये आपको देगा इसका कोचेंट। इस केस में क्या देगा ये 546, ठीक है। तो टेम्प में क्या असाइन हो गया, टेम्प में असाइन हो गया 546, प्रिंट हुआ आपका 7, और जो डिवीजन था इस डिवीजन से हमको ये आंसर मिला। डिजिट में क्या हो गया 7 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये परसेंटेज सिंबल था। ये आपको रिमाइंडर दे दिया, प्रिंट कर दिया, इसने टेम्प को कितना कर दिया 546 कर दिया। अब इटरेशन 2 आएगा, इटरेशन 2, ये इतना करके ये कोड ब्लॉक ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिर से चलेगा टेम्प ग्रेटर देन 10। अब टेम्प का वैल्यू क्या है, अब टेम्प का वैल्यू 5467 नहीं रहा, अब टेम्प का वैल्यू कितना रहा यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट लाइन ऑफ कोड ने क्या कर दिया है, टेम्प का वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अब ये कितना हो गया 546, ठीक है। अब जब डिवीजन करोगे नेक्स्ट टाइम, फिर से डिवीजन जब करोगे तो क्या करोगे 5467 परसेंटेज 10। अगर आप इसका परसेंटेज 10 लोगे तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। पहले तो आप ये बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसका कोचेंट आप आएगा 10 5 जा 4, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, ठीक है। 46 आ गया, 10 4 जा 40, 67 आ गया, 10 6 जा 60, ये आ गया इसका कोचेंट। और इसका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आ गया सॉरी 546 को डिवाइड करना था ना, टेम्प का वैल्यू 546 था। तो 10 5 जा 50, 46, 10 4 जा 40, रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। तो ये डिवीजन ये देता है 54 कोचेंट देगा और रिमाइंडर दे देगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिजिट कितना होगा, डिजिट हो गया आपका, डिजिट हो गया, इसका जो रिमाइंडर हो गया 10, टेम्प परसेंटेज 10, टेम्प परसेंटेज 10 क्या देगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट क्या हुआ, जो भी डिजिट में है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डिजिट में है वो प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में क्या होगा, टेम्प, टेम्प इजिकल टू टेम्प बाई 10। टेम्प कितना था 546, 546 बाई 10 जब आप इसका करोगे तो इसका जो कोचेंट होगा 54। ये टेम्प का वैल्यू बना के ये लूप ख़त्म। फिर इटरेशन 3 आया, इटरेशन 3 में चेक करेगा कि टेम्प ग्रेटर देन 0 है या नहीं, टेम्प ग्रेटर देन 0 है या नहीं। 54 ग्रेटर देन 0, दैट इज़ कंडीशन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, डिजिट पे क्या असाइन होगा, अब आपको मालूम चल गया होगा ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, राइट। अब हम लोग सीधा सीधे डिवीजन करेंगे। डिवीजन कितना करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये जब आप करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, रिमाइंडर हो गया 4, ठीक है। और इसका कोचेंट कितना आया, कोचेंट कितना आया 10 5 जा 50, इसका कोचेंट क्या आया 5। अब डिजिट में कितना आया, डिजिट में जो इसका रिमाइंडर आता है, राइट, रिमाइंडर जो आता है मॉड्यूलो करके वो डिजिट में आ जाता है। और इसको अगर आप प्रिंट करोगे, 4 को आप प्रिंट करोगे, फिर क्या करोगे आप टेम्प इजिकल टू टेम्प बाई 10 करोगे। तो टेम्प इजिकल टू टेम्प बाई 10 अगर आप करोगे
तो इसमें क्या होगा 54 करेक्ट। 54 जो कोचेंट में आया था, ठीक है। टेम्प इजिकल टू टेम्प बाई 5 कितना देगा, टेम्प का वेरिएबल इसका वैल्यू बना देगा ये 5, ठीक है। कि टेम्प बाई 10 क्या देता है, टेम्प बाई 10 हमको कोचेंट देता है, तो कोचेंट हो गया 5। अब इटरेशन नंबर 4, टेम्प ग्रेटर देन 0, टेम्प ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। डिजिट देखना आप, डिजिट इजिकल टू टेम्प परसेंटेज 10। अब टेम्प का वैल्यू कितना है 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 10 जब करोगे तो इसका कोचेंट क्या होगा, 10 0 जा 0, कोचेंट हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 10 0 जा 0 और रिमाइंडर कितना हो गया 5, ठीक है। रिमाइंडर हो गया 5। अब डिजिट में क्या आएगा, डिजिट में क्या आएगा, डिजिट में इसका रिमाइंडर आएगा 5। इसको आप प्रिंट करोगे, प्रिंट कर दिया आपने, और जो टेम्प का वैल्यू हो गया वो कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे था ना टेम्प इजिकल टू टेम्प बाई 10, तो टेम्प बाई 10 क्या देता है, कोचेंट देता है, तो कोचेंट का वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये जब लूप रन करेगा, राइट, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो गया फॉल्स, करेक्ट। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तब ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी इटरेशन हमने चलाया, प्रिंट क्या किया हमने, 7 प्रिंट किया, ठीक है। हमने क्या प्रिंट किया, 7 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या प्रिंट किया, देखते हैं। 7 प्रिंट किया, फिर यहाँ से क्या प्रिंट किया, यहाँ से 6 प्रिंट किया। थर्ड इटरेशन से क्या हुआ, क्या प्रिंट किया रहा, 4 प्रिंट किया। और लास्ट वाला इटरेशन से क्या प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया। तो अगर आप देखोगे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में प्रिंट हुआ है वो क्या क्या प्रिंट हुआ है, 7 6 4 5, और ये सेम वही डिजिट्स थे जो यूज़र ने इनपुट किए थे, ठीक है। तो ये सेम डिजिट्स आपके कंप्यूटर प्रोग्राम पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है, और ये लॉजिक इस टाइप से इम्प्लीमेंट होता है। आप किसी को इस लॉजिक पे डाउट है तो आप तो माइक ऑन करके बोल सकते हो या चैट पे लिख सकते हो। ये आप एक बार चेक करना, ये प्रोग्राम पूरा मतलब कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये तो मैंने एक बार समझा दिया आपको, फिर भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को लेके तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है ये प्रोग्राम पे, क्योंकि विल बी रैपिंग अप दिस सेशन आफ्टर दिस वन। लाइक अगर आप किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग ये आज का सेशन इधर पे ही रैप करते हैं, और फिर वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन। मतलब जहाँ पे हमने छोड़ा है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिस इज़ द पार्ट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, राइट। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, नो डाउट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आज का आपका ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और इफ़ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी वन हु हैज़ रजिस्टर फॉर दिस सेशंस for any reason, right, so for them we would be uploading this session in our YouTube channel. You can also watch like whatever we have covered in this video for the current session, and if you have any doubts in our first or the second session,
you can bring that up in the next session that we are going to cover up. Okay, having said that, thank you guys, thank you so much for your time. We'll meet up in the next lesson.